Okay. Praise God. हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले प्लीज समबडी रीड, प्लीज आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर भजन संगीत पढ़ेंगे। माइकल हमें भजन संगीत पढ़ने में मदद करेगा। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। Psalms 143 verse 10। Somebody read in Hindi. Psalms 143 verse 10. Teach me to use your ways, for you are the my God. Let me your good spirit lead me for one leap ground. Thank you. आइए हम अभी हम निकालेंगे Psalms 190 verse 9 to 16. Now let's turn our Bibles to Psalms 190. We'll be reading from verses 9 to 16, the second part of Psalms 190. एक वचन मैं पढ़ूंगा और एक वचन आप पढ़ना। I will be reading the first verse and you can read the second verse. Let's start. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। With my whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। In the way of your testimonies I delight, as much as in all riches. मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। I will delight in your statutes, I will not forget your law. ओके, आप लोग बैठ सकते हैं। You may be seated, please. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत मंथ के बाद मुझे आपके सामने और एक बार खड़ा किया। I thank God because after a long time, or after a long month, or after a long time, God made me to stand in front of you. परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। I thank all the leaders, those who allotted me to preach today. तो मैं वचन तो मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे मुझसे ये वाला वचन से बात किया, तो आज यही वचन मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। As I was preparing for the sermon, God spoke with me through this verse, so I will be sharing some thoughts from this verse. तो यहाँ पर पहले लिखा है कि एक जवान व्यक्ति अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखना है। So this verse speaks about a youngster, how he should walk or how she should walk in the ways. हम जब देखते हैं कि हम सब यहाँ पर बैठे तमाम जवान लोग हैं, हम हमारे जीवन को, हम हमारी चाल को किस उपाय से हमें शुद्ध रखना है। As we take our context, most of us are youngsters, those who are seated over here, and how we should think, how we should walk as we don't live. हमें शायद हो सकता है हमें नहीं पता हो कि हम किस रीति से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। We might be not knowing how can we make ourselves holy. बट परमेश्वर का वचन कहता है, But here the word of God says, परमेश्वर का वचन को मानकर, परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर के कमांडमेंट को मानकर हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है। Here the word of God says that if we obey the word of God, if we obey the laws and commandments of God, He will do it for us. और जब हम 10 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, The verse 10 says that with my whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञा की बात से भटकने न दे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी खोज में लगा हूँ। Here the word of God says like that, with my whole heart I seek you. आज हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। Even today, sometimes we are in search of God. But जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम ज्यादातर परमेश्वर को खोजने से ज्यादा हम लोग और चीजों में हम खोजे रहते हैं। But the matter is, and the truth is, the fact is, more than as we seek for God, we are in search of some other material things. just 2 दिन के पहले की बात है। This is the event that happened 2 days before.
मैं मेरा एक भाई से बात कर रहा था I was और talking with one of my brother. एक सच्ची घटना है। This is a fact that happened. मैंने उसको पूछा कि ब्रदर आप क्या कर रहे हो? I asked him, brother, what are you doing or what are you doing now? उन्होंने मुझे कहा मैं सिंपली बैठा हूँ और फोन चैट कर रहा हूँ और किसी से बात कर रहा हूँ। He told me that I am sitting simply and I am talking with someone through my mobile. वो एक विश्वासी लड़का है। He is a believer. तो फिर मैंने पूछा कि आपके पापा क्या कर रहे हैं? I asked him, what is your father doing? तो उन्होंने बोला कि हम आज आपके चर्च में आए हैं, तो मेरे पापा और आपके पापा दोनों मिलके वर्शिप कर रहे हैं। So he said like this, I came to the church and myself and my father, we are worshiping God. तो मैंने उनको बोला कि देखो आज हम जवान हैं और वो शायद हो सकते हैं उनका 40 या 45 साल का उनका उम्र है। So I told him we are at the age of 18 or 19 and we are youngsters. बट हम एक जवान होकर हम परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, हम परमेश्वर के हजूर में बैठना चाहिए, उसको छोड़कर हम एक किसी और के काम में लगे। Being an youngster, being a young people, a young fellow, we should be in search of God. That should be our aim. हमारा अभी का एज जो है, हमारा अभी का जो उम्र है वो है परमेश्वर की बातों को लेकर, परमेश्वर के कामों को लेकर, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना। The present context, the present age which we are in, we have to seek for the God. बट आज हम लोग किसी और ही दुनिया में घुस गए हैं। But the matter is we are in search of some other thing and we are living in some other world. इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का दास जिसने भी यह साम्स लिखा है वो कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। So the psalmist speaks says like that, with my whole heart I seek you. और मुझे तेरी आज्ञा को कैसे मानना है, Let me not wander from your commandments. उस बात को भी लेकर मैं खोज में रहा हूँ। Even I took the commandments and I am in search of more about your commandments. इसलिए मैंने आपको पहले साम्स 143 का 10 पढ़ाया। That's why I asked you to read Psalms 143 verse 10. वहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानना है और परमेश्वर की आज्ञा को हमें कैसे पूरी करना है, वो उसके पास से हमें उत्तर मिल सकता है। It is written in those verses like how we should obey the laws and commandments of God and how we should do it. और यहाँ पर जब हम 11 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, As we read the verse 11 of Psalm number 119, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है I have stored up your word in my heart कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। that I might not sin against you. मेरे प्रियो, हो सकता है हम पाप तो नहीं करते लेकिन जाने अनजाने में हमारे से कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती होगी। My friends, I am not saying that we commit sin, but sometimes by knowingly and unknowingly that the wrong things or the sin may happen in our life. जब हम पाप करते हैं तो हमारा जीवनों में हमें होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें बात करता है। But when we commit any kind of sin, and this is for sure that Holy Spirit He is speaking with us. वो हमें बताता है कि आप ऐसा नहीं करो। And He is speaking through to us that by saying you should not do this. अभी आपका टाइम नहीं है। This is not your time. आप इसको छोड़कर दूसरी जगह पे जाओ। You have to leave this and you have to go away from this. या तो आपको प्रेरणा देगा कि आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो। He speak with you through your mind by saying that you have to give up. जब हम 12 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, When हे we यहोवा, read verse 12, it says like that. हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. देखो यहाँ पर कहता है परमेश्वर का दास कि परमेश्वर धन्य है और हमें परमेश्वर के पास जाकर हमें कहना है, परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को पालन कैसे करना है, आप हमें सिखाइए। It is written here, the Lord is blessed, and we have to go near to Him and we have to ask Him, God, teach me how to obey your commandment, or teach me about your commandments. इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि एक जवान को अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रखना चाहिए। That's why the psalmist said that how an youngster should keep his ways. उसके वचन के अनुसार We should keep our ways according to the word of God. उसके हर एक आज्ञा के अनुसार We should keep our ways according to the commandments of God. उसके कहे हुए हर एक वचन के अनुसार We have to keep our ways according to the verses which we have. यहाँ पर 13 में लिखा है, तेरे सब कहे हुए नियम का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। Verse 13 says, with my lips I declare all the rules of your mouth. हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि तेरे हर एक कहे हुए वचन को, तेरे हर एक कहे हुए नियमों को मैंने मुख से उसको पालन किया है। So the psalmist said that God, I keep all your ways, or I keep all your rules in my mouth. पर हमें हमारा जीवन में देखना है कि आज वो परमेश्वर ने कही हुई आज्ञा को क्या आज हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। But the matter that we have to examine within ourselves is, are we following the rules and regulations of God? मैं किसी को भी ऐसा बात बताना नहीं चाहता हूँ। जस्ट हम सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर का दास एक गुरु हमें एक शिक्षा देता है, हम उसको फॉलो नहीं करते हो, हम कैसे परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो। We have to think in this way. I'm not for pointing anyone, but when a teacher is teaching us or instructing us, sometimes we are failed. If we are failure by to follow even the instructions by a teacher. But what about God's instruction? Are we following or not? हमें वो देखना है कि जब एक गुरु हमें जो शिक्षा देता है, उस गुरु के शिक्षा को हम सिर्फ बोलते हैं हाँ हम मानेंगे, उनके साथ एग्री होते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस शिक्षा को भूल जाते हैं। When a teacher is instructing us something or teaching us something or asking us to follow any rules, are we following him after saying yes? बट हम उसके बाद उसको करते नहीं, After that, are we doing or not? Sometimes we are not doing. हम उसको कंटिन्यू करते नहीं, We are not doing it continuously. हम उसको बीच में से छोड़ देते हैं। We leave it in between. सेम हमारा जीवन में वैसा ही। परमेश्वर हमें हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर के दासों के द्वारा, हर एक व्यक्ति के द्वारा, इवन वचन के द्वारा भी हमसे परमेश्वर कहता है आप अपने चाल चलन को सुधारो। Through many people, through our teachers, through the word of God, through preaching or through our brothers, God is teaching us we how to keep our ways. इसलिए मेरे प्रियो 14 में लिखा है, मैंने तेरे चितनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हो। In verse 14 it says, in the ways of your testimonies I delight as much as in all riches. देखो मेरे प्रियो, हर्षित होना मीनिंग मतलब है आनंद होना। It is written we how to feel that joy in our heart. मैं सब तेरे कहे हुए बातों से, तेरे दिए हुए हर एक ब्लेसिंग से मैं हर्षित हुआ हूँ। And the psalmist said that because of God, because of all your testimonies, I am happy. I am experiencing that happiness in my life. बट फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है तो हम फिर भी जाते परमेश्वर के पास और कहते परमेश्वर ये क्या हो गया। But at times the struggle and the hardship will come to our life and we go to Him and we will ask Him, God, why this is happening? इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है परमेश्वर किस रीति से आप हमें चलाना चाहते हैं, किस रीति से आप हमें शुद्ध करना चाहते हैं, आप हमें कीजिए। That's why we have to go near to Him and we are asking, God, cleanse me. How and why and when we have to do, but cleanse me, Lord. प्रभु आप किस रीति से मुझे उपयोग करना चाहते हैं, आप हमें कीजिए। How you want to use me, Lord, you can use me in that way. जब हम 15 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, And the verse 15 says, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा I will meditate on your precepts और तेरे मार्गों की और दृष्टि रखूंगा। and I fix my eyes on your ways. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जब हम Psalms 121 पढ़ते हैं, When we read Psalm 121, वहां पर वचन लिखा है, then the verse says like this. मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। And the verse says like this, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? When we are reading in second word, And when we read the second verse, वहां पर लिखा है कि मेरी सहायता उस यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। my help comes from the Lord who made heaven and earth. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर 50 में लिखा कि मैं तेरे उपदेशों के ऊपर ध्यान करूंगा। And Psalm number 119 and 15 says that Lord, I will meditate on your precepts. मैं फिर से आपको यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर हमसे हर एक व्यक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा कंटिन्यू हर रोज हमसे वो बात करता है। I just want to repeat by saying this, God is speaking to us by His words daily and daily. हमें कैसे शुद्ध होना है, How we should make our ways upright. हमें कैसे पवित्र होना है, How we should be holy in our ways. हमें हमारा चाल चलन को कैसे बदलना है, How we should keep our behavior. थ्रू परमेश्वर के वचन के द्वारा। That we have to keep our behavior through the word of God. जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, हम लगातार उसके साथ जुड़े रहेंगे,
वो हमसे बात करेगा। When we sit in His presence, when we are near to Him always and always, He will take care of us. मेरे प्रिय, बहुत सारे जगत में अभी भी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान इसके होकर वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें उससे अलग रखा है। There are many people in this earth, they are going through many kind of difficult situations in their life, but God sustained us and He kept us here today. बट हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, वो सारी चीजों से परमेश्वर ने हमें एक सेपरेट रखा है। But we have to thank God why? Because He separated us from all these things. क्योंकि उसका उपदेश को हम मानते हैं। Why? Because we are obeying His commandments. क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। Why? Because we are obeying His laws. हम उसके कहे हुए अनुसार हम चलते हैं। Why? Because we are walking according to His will. बट मेरे प्रियो, हमें इस वचन को लेकर, इस जगह में हमें परमेश्वर के कामों को लेकर आगे बढ़ना है। But my friends, we have to take His words and we have to equip ourselves as we are here. हमें ऐसा नहीं सोचना है कि आफ्टर स्टडी, आफ्टर ग्रेजुएशन हम एक अच्छा विजय पा लिया। We should not think in this way that after graduation only I will see the victory. After that only I will face the victory. बट जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। As we get graduated from here, our real journey starts from that moment. तब हमें पता चलेगा कि आज हमारा जीवनों में, हमारा चाल चलन में, हमारा बोलने का तरीका में, हर एक चीज में, हमारा स्वभाव में हम बदलाव आया है कि नहीं। Then only we can come to know. We will come to know that did I change anywhere in my behavior in my life. इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में बैठकर परमेश्वर के साथ संगति बना के, उसके साथ कनेक्ट होकर हमें हर एक दिन शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, हमारे चाल चलन को बदलने के लिए उसकी हजूरी में आना। That's why daily and daily we have to sit in His presence and we have to beseech, we have to seek His face. और जब हम 16 में पढ़ते हैं, And we read in verse 16. मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। I will delight in your statutes. I will not forget your word. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर एक विधियों को, हर एक चीजों से मैं सुख पाऊंगा। Here the psalmist said that God, I will be delighting her. I will delight in your statutes. और मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। I will not forget your word. बट हम समटाइम, कभी-कभी हम लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। But at times in our life we forget the word of God. जैसे हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को 10 आज्ञा दिया। As we see in the verses, through Moses, God gave commandments or God gave laws to the people of Israel. फिर भी वो लोगों ने उस आज्ञा को नहीं माना। Even after that, they did not obey the word of God. वापस उनके ऊपर परसिक्यूशन चालू हो गया। After that, they were under suffering. परमेश्वर ऐसे हमको भी हर प्रतिदिन परमेश्वर के दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, इवन हमें खुद परमेश्वर बात करता है, लेकिन हम फिर भी उस आज्ञा को नहीं मानते, उसको भूल जाते हैं। In the same manner, God is speaking through our leaders and through our friends. Even by ourselves, God speaks to us personally. इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है, परमेश्वर आप हमें पवित्र बने, आप हमें हमारे जीवन में सुधरने के लिए आप हमें मार्ग दिखाइए। That's why we have to go to God and we have to tell God that God, I want to change and show me the way. और हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकें। So we have to go to God and we have to ask Him, God, open my spiritual eyes so that I can see. ये वाला वचन लिखा है Psalms 119 verse 18 में लिखा है, Psalm 119 verse 18 says like this. मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। God, open my eyes so that I can see your laws. हमें परमेश्वर से कहना है, शायद हो सकता है हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, अभी तक भी हम लोग, हो सकता है हम आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को बता रहे हैं, हम परमेश्वर की हजूर में हर रोज आते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें जब खोलेगी हमें पता चलेगा कि हमारा सच्चा मार्ग क्या है। Sometimes this is a fact that happens in our life, even as we live, even as we come for worship, and we do all these things, but our spiritual eyes are closed. इसलिए हमें कहना है, परमेश्वर मैं इस जगत में, मैं इस दुनिया में मैं एक परदेशी हूँ। That's why we have to tell to God, Lord, I am a foreigner in this world. पर प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। But Lord, I need you. इस वर्ल्ड में, इस जगह में, इस जगत में मुझे कैसे चलना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे लीड कीजिए।
Lord, I don't know how to walk and how to live in on this world, but you have to lead me, Lord. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है That's why the word of God says like this. Psalms 143 verse 10. भजन Psalms संहिता 143 verse 10. 143 का 10 वचन। मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। थ्रू दिस वर्सेस परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। God let God bless you through these words। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Let's stand together।